हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ कंटूर फार्मिंग से। इसके अंदर में फर्स्ट जो पॉइंट है वो मिनिमम रो ग्रेड है। जनरल क्राइटेरिया फॉर कंटूर कल्टीवेशन आर आउटलाइंड एज अंडर। तो फर्स्ट है मिनिमम रो ग्रेड। द लेवल ऑफ रो ग्रेड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया for contour cultivation. The grade of crop rows should be sufficient so that there should not be the water ponding, otherwise there is possibility of getting damage of the planted crop due to water stagnation. तो रो ग्रेड का मतलब है कि जो पर्टिकुलर रोज ऑफ क्रॉप जो क्रिएट किया था फील्ड में, उस रो की बात हो रही है और उस पूरी जो रो है उसका एक स्लोप मेंटेन किया जाता है ताकि वहाँ पे वाटर उसके आसपास में या उस एरिया में जो वाटर स्टैग्नेशन क्रिएट ना हो जो फ्लोइंग वाटर की वजह से, और जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको कोई फिर उससे दिक्कत ना हो, फ्लोइंग वाटर जो है वो आसानी से उस फील्ड से निकल जाए। देन मैक्सिमम रो ग्रेड। टू हैव बेटर रिजल्ट द मैक्सिमम रो ग्रेड शुड नॉट एक्सीड आइदर 1/2 of up and down hill slope used for conservation tillage planning और 10% whichever is less। तो मैक्सिमम रो ग्रेड का एक लिमिट दिया हुआ है 1/2 of up and down hill slope या फिर 10% ऑफ कंजर्वेशन प्लानिंग हिल स्लोप। तो जो कम होता है उसको अप्लाई किया जाता है फील्ड में। हाउएवर up to 25% deviation from the design row grade can be permitted within 150 feet distance of outlet. If the row grade reaches to the maximum allowable design grade, then it is important to establish a new baseline up or down to the slope, the last contour line, and should be used for deciding the layout of next contour pattern. तो मैक्सिमम रो ग्रेड का मतलब है कि उस रो में ग्रेड देना है वो कितना लिमिट में रखना है जिससे कि वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज ना हो, सॉइल लॉस भी ना बढ़े। और मिनिमम रो ग्रेड का ये मतलब है कि वो उस एरिया में इतना स्लोप होना चाहिए, उस रो में इतना ग्रेड मेंटेन होना चाहिए ताकि उस फील्ड में जो है वाटर का स्टैग्नेशन क्रिएट ना हो। तो ये हो गया। देन मिनिमम रीच हाइट, it is decided on the basis of row spacing. First, when row spacing is more than 10 inches, at this level of row spacing the minimum ridge height should be 2 inches during rotation period, which is normally being most vulnerable period for occurrence of sheet and reel erosion. Second, when row spacing is 10 inches or less, for this row spacing the minimum ridge height should be to the tune of each of 1 inch for close grown crops like small grain, provided that the height of plant is at least 6 inches and the spacing between the plant within the row is not more than 2 inches during most vulnerable period of sheet and reel erosion. तो मिनिमम रीच हाइट इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे जो है डिसाइड की जाती है। फर्स्ट है व्हेन रो स्पेसिंग इज मोर देन 10 inches and second when row spacing is 10 inches or less. The next, stable outlets. The location of outlet in the area also forms an important guideline for contour farming system. The outlet provides a means for diverting or draining the excess water from the area safely. If natural outlet is there, then no matter otherwise outlet is required to locate manually, for which the site selection should be such that sufficient amount of surface flow can be diverted or drained safely from the area and crop should be saved from getting damaged due to water stagnation. तो किसी फील्ड में जो है आउटलेट कंडीशन जो है देना या आउटलेट लोकेशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि क्रॉप को कोई लॉस ना हो, फार्मिंग सिस्टम को कोई लॉस ना हो, ज़्यादा फील्ड जो है उसको लॉस में ना जाए, अर्थवर्क ना लगे, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में और एक सूटेबल लोकेशन पे आउटलेट क्रिएट होना जरूरी होता है फील्ड में। Apart from the above criteria, maximum row grade should also not exceed 0.2%. This is essential for enhancing the water infiltration in the soil during rainfall. ये सारी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है, वो सारी ये सारी पॉइंट्स जो है वो माइंड में रख के जो डिज़ाइन किया जाता है।
कंटूर कल्टीवेशन के लिए। देन नेक्स्ट है डिजाइन कंसिडरेशन। देयर आर host of factor affecting the effectiveness of contour farming to reduce soil erosion. The important factors are as follows. तो फर्स्ट है रेनफॉल डेप्थ एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। तो एक रिटर्न पीरियड लिया था 10 ईयर का और 24 आवर इंच रेनफॉल जो है वो चेक की जाती है रेनफॉल डेप्थ एंड फ्रिक्वेंसी के अंदर जो कंसिडरेशन उसमें। देन नेक्स्ट है रीज हाइट, रो ग्रेड, स्लोप स्टिफनेस, हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप, कवर एंड रफनेस, स्लोप लेंथ। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिजाइन कंसिडरेशन में कंसिडर किए जाते हैं। तो रेनफॉल डेप्थ एंड फ्रिक्वेंसी ये तो हो गया। रिज हाइट जो है ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कितना मेंटेन करना है, क्या क्राइटेरिया होना है, तो वो हो गया। देन रो ग्रेड वो भी ऊपर डिस्कस हो गया। स्लोप स्टिफनेस, स्लोप जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप जो है ये एक अलग टॉपिक है, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे सिलेबस में होगा तो डिस्कस करते हैं इसको। हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप में सॉइल को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजी। देन कवर एंड रफनेस हो गया, स्लोप लेंथ हो गया। मतलब एक स्लोप लेंथ में एक लेंथ सिलेक्ट किया जाता है और उस लेंथ में कंटूर वाइज लेंथ में जो है स्लोप मेंटेन किया जाता है। देन नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, एस्टेब्लिशमेंट and operation of this practice should be as per criteria, consideration and operation and maintenance point of view. First है minimum percentage slope, second है within minimum and maximum allowable low grade for the contour system, third है map or photograph of field showing the approximate location of baseline and stable outlet. तो ये हो गया। Then next है limitation of contour farming. Contour farming creates better result in the field of relative uniform slope. It is impracticable on the field having irregular topographical features. Similarly, the use of grass waterway in conjunction with the contour farming system is essential to reduce the possibility of gully development in contour cultivated land. ये हो जाता है लिमिटेशन की। कंटूर फार्मिंग में जो है ग्रास वाटरवे का यूज करना नेसेसरी हो जाता है, अदरवाइज उसमें गली इरोजन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। और कंटूर फार्मिंग जो है हिली एरियाज में ही ज़्यादा किया जाता है और जनरली इरेगुलर फीचर्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा अर्थवर्क किया जाता है या फिर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है जो कंटूर फार्मिंग में खड़े। देन यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है स्लोप लेंथ रेंज फॉर कंटूर फार्मिंग। तो मैक्सिमम स्लोप लेंथ जो है वो कितने स्लोप में क्या रखना है ये दिया हुआ है यहाँ पे। लाइक 3 to 5% स्लोप है फील्ड का, तो मैक्सिमम स्लोप लेंथ जो है 90 मीटर का रखा जाता है। पैरेलल टू स्लोप की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंटूर फार्मिंग। फर्स्ट है परफॉर्म ऑल टिलेज एंड प्लांटिंग ऑपरेशन पैरेलल टू कंटूर बेसलाइन और टेरेस diversion or contour buffer strip boundaries provided that the row grade criteria is satisfied. Then second है if the terrace diversion or contour buffer strip are not in the field, then use the contour make on grade which have already been done during crop cultivation to maintain the crop rows at design grade. Third है the farming operation should be started from the contour baseline and proceeded up and down to the slope in parallel way with respect to baseline. Then next if the field operation begins to get converged between two non-parallel contour baseline, then establish a correction area that may be permanent pasture land. Then if the curvature of contour row is very sharp to keep machinery aligned in the row during field operation, then establish a sawed strip on the sharp edge point or at any suitable point as per requirement. Then next देख रहे हैं यहाँ पे contour tree planting. It is the planting of trees at closer spacing across the slope on contour to slow down the rainwater flowing down the slope.
एंड रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। कंटूर में जो है कंटूर कल्टीवेशन के साथ में ट्री प्लांटिंग भी की जा सकती है अगर एक नेसेसरी फील्ड अवेलेबल है तो। इन दिस इट इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एट क्लोजर स्पेसिंग अक्रॉस द स्लोप ऑन कंटूर। तो स्लोप के अक्रॉस में जो क्लोज स्पेसिंग में छोटे छोटे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं टू स्लो डाउन द रेन वाटर फ्लोइंग डाउन द स्लोप एंड रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। In this practice, also tree build up soil deposition towards upsoil side of the tree planting, which takes the shape of terrace after lapse of few time. इसमें क्या है, फ्लो के अपोजिट साइड में ट्री स्लोप के अपोजिट साइड में ट्री के निचले पोर्शन पे जो है सॉइल का बिल्डअप किया जाता है ताकि उसको एक स्टेबिलिटी मिले उस फील्ड में, और वो जो है फ्लो के साथ में या फिर सॉइल के साथ में जो गिर ना जाए। इन बिटवीन rows of such planting the food crops, the rows can also be taken, which enhance the effectiveness of tree planting. The closely spaced tree along the contour line holds the soil and build up mounds around their trunks, which tend to join together over time and form a small ridge and bund-like structure. तो क्लोज स्पेसिंग ट्रीज प्लांटिंग करने से ये फायदा हो जाता है कि वो उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को कैप्चर करके रखते हैं अपने साथ में, और धीरे धीरे जो है रूट्स भी जो है ट्री के वो एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कि उस एरिया में एक रिच टाइप का फॉर्मेशन या बर्न टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होने लगता है। When water reaches to the such ridge, get stop and form a puddle and percolate into the soil. This effect of tree planting is beneficial to conserve the moisture in the soil and raise moisture availability status. तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कंटूर ट्री प्लांटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है लाइन ऑफ ट्री प्लांटिंग प्रिवेंट्स द वॉशिंग ऑफ सॉइल डाउन द स्लोप ड्यू टू रेन वाटर फ्लो। सेकेंड है retains the top soil in the field and thus maintain the soil fertility. Third, the tree provides fodder for animal and fuel for domestic use. Fourth है soil conditioner भी provide करता है. The tree can be trimmed and leaves could be as mulch material as green manure. Fifth है tree planting encourage the plowing across the slope instead of up and down, which is further beneficial to reduce the soil erosion. नेक्स्ट है फोडर ग्रास और लेग्यूम्स कैन बी ग्रोन अलोंग द रोज ऑफ ट्रीज। तो ये सारे हो जाते हैं जो बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बेनिफिट्स हो जाते हैं कंट्रोल फार्मिंग करने से। देन डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। तो फर्स्ट है इफ द ट्रीज आर नॉट pruned रेगुलरली देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ शेडिंग इफेक्ट ओवर द इंटर क्रॉप जोन। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है अगर ट्री को जो है प्रूनिंग नहीं की जाती है और उसका जो हाइट और विड्थ जो है ट्री का, उसके जो रूट्स होते हैं उसके लीव्स होते हैं उनका मेंटेन नहीं किया जाता है, तो लीव्स की वजह से एक उसके नीचे आसपास के एरिया में जो है शेडिंग पोर्शन क्रिएट होने लगता है, जिससे कि ग्रोइंग क्रॉप को प्रॉब्लम हो सकती है। देन ट्री रूट्स कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन प्लाइंग ऑपरेशन। तो रूट्स भी जो है वो प्लाइंग ऑपरेशन में एंडरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ट्री में डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट फॉर द ग्रोन इंटरक्रॉप्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्री प्लांटिंग फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एट कंटूर ऑफ द एरिया। द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आर गिवन एज अंडर। तो फर्स्ट है ट्री सीडलिंग, होई, लाइन लेवल, ए फ्रेम। तो ये चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ट्री प्लांटिंग के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है नर्सरी रेसिंग। For tree plantation to control soil loss, the selection of suitable vegetation species is first task before going for seedling raising. Few choices on various tree species should be based on the following points. First, legumes tree like Lucina and Albizia for fodder, fuel, wood, etc. Then fruit tree for fruits, other type of trees for building poles and fuel wood। तो कंस्ट्रक्शनल वुड या फिर फ्यूल वुड का जो है ट्रीज वो ग्रो कर सकते हैं नर्सरी में अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट है प्लांटिंग प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट है
choose the place on the slope for planting. Mark the contour line position across the slope with stick or stone. तो एक लोकेशन चूज करना है, उसको मार्क करना है, देन एक सुटेबल साइज का एक उसमें जो है होल डक करके सीडलिंग करना है. मूव अबाउट 10 मीटर अप एंड डाउन स्लोप टू मार्क अनदर प्लांटिंग रे. तो 10 मीटर अप या डाउन मूव करके एक और प्लांटिंग रो जो है मार्क करना है. प्लांट स्लीडिंग इन द होल एंड इरिगेट देम. तो होल में प्लांटिंग करके उसको इरिगेट करना है. प्लाउ द सॉइल बिटवीन लाइन ऑफ यंग ट्रीज एंड प्लांट द फूड क्रॉप्स. तो ट्रीज के बीच में फूड क्रॉप जो है वो ग्रो करने हैं. रिमूव द वीड्स फ्रॉम देयर. वीड्स को जो है फील्ड से कम्प्लीटली रिमूव करना है. इफ देयर हैव बीन प्लांटेड लेग्यूम्स वेजिटेशन देन प्रून देम रेगुलरली टू रिड्यूस देयर शेडिंग इफेक्ट. तो प्लांटिंग के बाद जो है ट्रीज को प्रूनिंग करना नेसेसरी हो जाता है उसके शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए. तो ये हो गया प्लांटिंग प्रोसीजर. तो इस क्लास में बस इतने. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग से. तो थैंक यू गाइस.